हेलो गाइस, वन सेकेंड, वेलकम यू ऑल हेयर इन कंसेप्ट जोन। ठीक है। तो अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने ब्रांच लाइन कपलर को डिजाइन करा था। ओके। और वहाँ पे हम लोगों ने रिजल्ट भी देखा था, जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये ब्रांच लाइन कपलर हम लोगों ने डिजाइन करा था और उसको ऑलमोस्ट स्टिमुलेट भी करा था और हम लोगों ने रिजल्ट भी देखा था। ठीक है। और ये हमारा रिजल्ट था कि हम वी आर सपोज टू डिजाइन फॉर सेंटर फ्रीक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज एंड वी आर अचीविंग ऑलमोस्ट 10 गीगाहर्ट्ज, यू कैन सी हेयर। ओके। so this is almost 10.09 gigahertz center frequency. Okay. And as you can see here, for 10 gigahertz power is also divided, I think equally, because you can see that for point M2 it is minus 3.3 and for point M3 it is minus 2.77, so almost like 0.5 dB error is going on. Okay. So no problem, I think we have done this. And now in the continuous of our Butler matrix network, what we will going to do, what we will be doing in the next time, basically we will be designing our crossover. Okay, by cascading our this branch line coupler. Okay. So one thing I have forgot to mention, that what should be the phase difference of our branch line coupler. I think it should be a 90-degree phase shift between port 2 and port 3. Okay, so let's check it through our result. ठीक है। तो अभी चलो देख लेते हैं और उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा आ भी रहा है या नहीं, या जो हमारा पोर्ट 2 और पोर्ट 3 के बीच में एंगल है ना, वो कितना आना चाहिए। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एस पैरामीटर पे जाके 2 और 3 पोर्ट S12 S13 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंगल इन डिग्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ सेमी कॉलन को हटा करके यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है। इससे क्या होगा, सीधा सीधा हमारा फेज शिफ्ट ही दिखेगा। तो ये देखो, ये हमारा फेज शिफ्ट दिख रहा है और इसमें अपन एक बार देख लेते हैं 10 गीगाहर्ट्ज पे कितना आ रहा है फेज शिफ्ट। 90 डिग्री आना चाहिए वैसे। देखो ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 89.92 डिग्री। you can visualize it how optimize the structure. Okay. सो बेसिकली हम लोगों ने एक इंडिविजुअल एलिमेंट ब्रांच लाइन कपलर को डील कर लिया है। अब हम लोगों को करना क्या है, चलो मैं आपको अपना पीपीटी पे लेके चलता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वी हैव डिजाइंड एंड वी हैव सीन आवर ब्रांच लाइन कपलर as well as our structure also we have seen and we have stimulated. Now the second element of our Butler matrix network is crossover. Okay, so we will be dealing with the crossover. Now first of all, question arises that what is the need of crossover in our Butler matrix network, or we can learn here that what are the important facts related to crossover. Okay. So what happens that in the communication system or in any radio frequency system, what happens that the biggest hurdle will be the noise. Okay. So to overcome this problem, to overcome this noise interference, what we can do, we can use crossover circuit. Okay. So that is why the biggest hurdle of our Butler matrix is also a interference of noise to the signal. So to overcome this problem, what we will do, we will design a circuit crossover. Okay. Now we can simply design our crossover by just cascading of two hybrid couplers. Okay, two branch line coupler. Okay, I have mistakenly written here hybrid coupler, but you can design by simply cascading of two ब्रांच लाइन कपलर एज वेल। ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि इसमें भी जो है 4 पोर्ट्स होगा और जिसमें कि 2 इनपुट होगा और 2 आउटपुट होगा। ओके। सो एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट क्रॉस ओवर विल हैव द जीरो फेज डिफरेंस इफेक्ट। ओके। सो दिस इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस ओवर, where you can see I have one coupler here and the another coupler here, branch line coupler, and what we are doing, we are actually cascading this one. Okay, in a series form. Okay, so you can refer here that this one is the coupler 1 and this one is the coupler 2, and what we will be doing, we will be cascading it. Okay, so this is our HFSS model front structure, okay, of our crossover.
सो इतना पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है कि हाउ टू डील विथ ब्रांच लाइन कपलर. सो वी हैव ऑलरेडी डिजाइंड एंड एस्टिमेटेड एंड वेरीफाइड आवर रिजल्ट ऑल्सो. सो what will be the next process? Next process will be that we have to just copy this branch line coupler and make a duplicate and just cascade it, okay, and combine it, and every dimensions will be same as dimensioned in the above branch line coupler. Okay, so let me show you first that how to deal with it. So to do so we have to go on HFSS. So what you can do, you can actually start your new project, just named it crossover. So just new project and let's name it, it's a crossover. Okay, crossover at 10 gigahertz. Okay now, so now we have to select our interface to design. Now this is our interface. What we can do, we can just use our branch line coupler design. Okay, so basically we can select our, this one is the ground plane and this one is our design. Okay, so first of all what you can do, you can just select the structure, strip line micro strip line structure of our previous branch line coupler and just press Ctrl C. Okay, and now come to our crossover project. Okay, so this is our crossover project, where what you can do is you can just paste it out. Okay, so go to modeler, import from clipboard, and as you can see we have a structure for our branch line coupler. Okay, so now what we can do, we can just duplicate it. Okay, we can just duplicate it. First of all we will be making our structure, and then we will be going to take our substrate as well as ground plane and many more things. Okay, to complete our crossover. So चलो क्या करते हैं, इसको अपना लोग पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसे सेलेक्ट करते हैं. जो हम लोगों ने अभी सीट देखा है उसमें अनअसाइंड होगा, ये वाला सीट है. इसको वापस से Ctrl C करो और Ctrl V करो. ठीक है, अब ये हमारा एक और स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है जो कि इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एडिट करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, हमें अरेंज करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स अरेंज इट एंड मूव इट. ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सपोज करो कि इसी फिगर को हमें वापस से यहाँ लगाना है. ठीक है, कैस्केड करना है. तो हमारा ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे मैच करना चाहिए. ये हमारा ये वाला पॉइंट जो है इसको उठाओ और इस पॉइंट पे मैच कर दो. जस्ट सी इट, यू कैन see from here that our structure is almost ready. Okay, now what will be the next procedure, like you have to combine it. Okay, just press Ctrl and select both the structure, and what you can do, you can just combine it. Okay, so you can see now one more thing I would like to tell. On the move section you can just see that we are moving only in y direction. Okay, so क्या हो रहा है कि हम लोग x में ना ही मूव कर रहे हैं, ना ही इस स्ट्रक्चर को x में मूव कराया है और ना ही z में मूव कराया है. तो हमने सिर्फ y में मूव कराया, वो भी कितना 17.36, जो हमारा वन स्ट्रक्चर था उसका जितना डायमेंशन था y में उतना ही हम लोगों ने मूव करा. ठीक है, तो यू कैन क्रॉस चेक इट हेयर फ्रॉम द मूव बार. ओके, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसके ऊपर हम लोगों को इसके नीचे, सॉरी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइट कितना दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका हाइट कितना दिख रहा है 13 मिल. तो हम लोगों को क्या करना है कि इसके नीचे, ये ऑलरेडी z = 13 मिल पे है, तो इसके नीचे हम लोगों को एक सबस्ट्रेट डिजाइन करना है और उसको वो सबस्ट्रेट RT रोजर 5880 होना चाहिए और फिर उसके नीचे ग्राउंड प्लेन लगाना है. एंड देन व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी जस्ट doing our port analysis and we will be assigning our port. Okay, and then we will be stimulating it. Okay, so वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो ये अभी आप देख लो कि ये कैसे डुप्लीकेट करना है. एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी विल बी डूइंग, we will be completing our crossover structure and
we will be verifying our result also. Okay, till then start reading एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव. ओके, सो क्या है ना कि बेसिकली हम लोग डिज़ाइन करने के लिए सीख रहे हैं. ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइक आपको कंसेप्ट मिलेंगे अच्छे. ठीक है, सो इन नेक्स्ट अपकमिंग टाइम ऑल्सो व्हाट वी विल बी डूइंग लाइक हम लोगों ने अभी सोचा है कि अपना सबसे वास्ट सब्जेक्ट क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होता है हमारे बीटेक सिलेबस का. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं तो हमारा सबसे वास्ट सिलेबस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से. ठीक है, और उसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन चल रहा है हम लोगों का और हम लोग अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के मूड में हैं. तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो. तो आपको आगे जो है बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोग उस पर फोकस कर रहे होंगे, लाइक ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड. बिकॉज क्या है ना कि वो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला पार्ट बस थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन है, ब्ला ब्ला. उसका क्या है मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो सीख लेंगे. और उससे रिलेटेड क्या है ना कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है कि हाउ टू यूज आवर ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी एंड हाउ टू यूज आवर वेव गाइड थ्योरी. तो ये दोनों पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे. टिल देन अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर एंड स्टार्ट रीडिंग. ओके, बाय बाय.